what I can get from you to what I can give you. कि ये अगर लोगों के दिल में आ जाए कि भाई सब धर्म एक ही बात बता रहे हैं इंसान, अच्छा, उनके भी माँ बाप हैं। हाँ जी, और बिल्कुल। मैं वहां पर भी मैंने पाकिस्तान के बच्चों से बात की, हमारे जो J&K के बच्चे गुमराह हो गए उनसे बात की। And we will all die one day. The American will die, the European will die, the Asian will die, the Muslims will die, the Buddhists will die, Hindus, all will die. Nobody will be spared from death. Impacted. All. And then we all, whether you are American, European, Asian, whether you are Buddhist, Muslims, Christian, Hindu, whosoever, we all share one planet. Hello everyone, my name is Pranav Vashisht and this is the Gut Feel Show, a podcast on mental well-being where we invite guests from all walks of life and we discuss different aspects of well-being in their profession and in their life. Our today's guest is very special. He is Guruji from Leh. He is the founder of Mahabodhi Meditation Institute in Leh. We have a monk in the house today, and we also have our Major General Yashpal Moore sir with us. And today we are discussing about compassion from two different extreme ways of life. One serving in the army on the border, and one learning about and spreading love with compassion. Please keep watching till the end. This podcast will tell you a lot about compassion and the happy ways of living life. Thank you so much. Keep watching till the end. Namaste Guruji and Yashpal sir. I'm glad to have you both together. And this is one of a kind podcast that I'm going to do today, and it's going to be really heavy because it is a very intense topic that we are going to discuss around compassion. Welcome to the show. Welcome. Thank you. I would like to begin with one thing which is very common in both of you, and मुझे बहुत मतलब आश्चर्य हुआ पहले तो समझा जब मैंने कि आपकी भी जर्नी स्टार्टिंग के 4 साल आर्मी में थे, and you have served in the army Almost 40 years. Yes, for 40 years now. And so that is something where the things are common. And आपसे जब मैंने यशपाल से डिस्कस किया था लीडरशिप के बारे में और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, और गुरुजी का सारा काम कंपैशन के अराउंड है, मुझे प्लीज समझाइए आपके दोनों के अपनी अपनी डोमेन में कैसे कंपैशन को थोड़ा सा मुझे इलैबोरेट करिए आप। मुझे कंपैशन समझाइए थोड़ा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग को जनरल साहब और मेरे को आपके गट फील शो के लिए शो में इनवाइट किया है। थैंक यू। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, आपने इस विषय पर कंपैशन के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमको जनरल साहब और मेरे को इनवाइट किया है। तो कंपैशन द माँ करुणा हैज़ बीन द driving force behind the various spiritual and humanitarian services undertaken by my organizations, the Mahabodhi International Meditation Center in Leh Ladakh. We started this journey of compassion for last more than now 30 years. Now more and more we think on this subject, more and more we contemplate the applications of compassions in our daily life, and more it becomes clear how important it is, the compassion in action. True. This compassion in action, how compassion in action can bring a change, a revolution in the crisis of the present world. बिल्कुल। The world is going through unprecedented crisis, challenges. War is going on, killing is going on, and all other kinds of like global warming, climate change, environmental degradations, and all kinds of economic crisis. So I see the role of compassion in action. Please understand, compassion or karuna is nothing special. Everybody knows, have heard. Here the specialty is compassion in action. Yes. Unless and until, whether compassion or love for anything, until and unless we put in action, these are all just useless mumbo jumbo There's words. concept going This around. action importance. People. So this is a wonderful occasion to talk about this and let people understand how compassion in action can bring change or contribute for the betterment of humanity.
सर आप थोड़ा सा मुझे समझाइए, जब सर्व कर रहे थे आप 40 इयर्स सर, कम लीडरशिप, आपने अपनी टीम के बारे में बताया, कैसे आपने टीम को बांध के रखा, इमोशनल इंटेलिजेंस यूज हुई, बड़ा बॉर्डर पे है, लड़ाई भी हो रही है, आपके लिए कंपैशन का क्या मीनिंग उस टाइम पे था और अब क्या है कंपैशन का मीनिंग? तो मेरे लिए मैं बहुत इसमें मेरे कभी दुविधा नहीं रही मन में, कभी भी नहीं रही। जब ज्वाइन किया था फौज पुंछ राजौरी में तब भी नहीं रही, और रिटायर हुआ तब भी नहीं रही। तो मतलब जब यंग ऑफिसर था तब भी नहीं थी, और जनरल बन के भी नहीं रही। बिकॉज मुझे बहुत क्लियर है कि धर्म और कर्म के बीच में, धर्म को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रिलीजन के साथ। धर्म इज राइटियसनेस। अब गुरु जी सही क्या करना है, व्हाट इज राइट, जो गीता में लिखा है, सारे धर्म गुरुओं में लिखा हुआ है, हर जगह बात होती है व्हाट इज राइट, सही करना है आपने। और जहां आपको पता सही करना है, सही एक तो होता है इंसान के तौर पे दूसरे इंसान के साथ कई सही व्यवहार क्या, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। एंड दूसरा व्हेन यू आर वेरी यूनिफॉर्म, आपने आप यूनिफॉर्म पहनी है मदर इंडिया की, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, तब क्या सही करना है। सो इसके बीच में देयर वाज नेवर अ कॉन्फ्लिक्ट कि लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, लोग सब कुछ हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मणिपुर हो, हर जगह लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लोग लीडर आएंगे जाएंगे बट लोग रहेंगे। बिल्कुल। तो लोगों के मन में, लोगों के लिए सही धारणा रखना अपने मन में। और दुश्मन अगर आया वो हमारा काम है, वो गलत चीज करने आया यहाँ, उसको हमने एलिमिनेट करना है यहाँ से। सो ये इसके बीच में कभी विरोधाभास हुआ नहीं। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि अगर आप सही टेनेट समझते हो, धर्म क्या है और कर्म क्या है। कर्म है जो आपको जो भी है, आप कुछ कर्म कर रहे हो, गुरु जी कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन सबका एक ही है, लक्ष्य एक ही है, टुवर्ड्स बेटर ह्यूमैनिटी, टू बिकम बेटर पर्सन, अच्छे इंसान के अल्टीमेट गोल ये है कि सभी, सिर्फ गुरु जी ने बात की इंसानों की और पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की, पशु पक्षियों की, बिकॉज एवरीबडी इज कनेक्टेड। बिल्कुल। और सबके लिए हमें ये सोचना है। तो दैट इज हाउ आई हैव सीन दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपैशन, एम्पैथी, राइटियसनेस एंड योर ड्यूटीज। बिकॉज सर क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक पोल्स अपार्ट वाले सिचुएशंस हैं, जैसे बुद्धिज्म में फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हम बुद्धा जी का बोले तो लव फॉर ऑल, लाइक इवन इन अ सिचुएशन इफ समवन इज अगेंस्ट यू, इट इज अबाउट लव फॉर ऑल। आर्मी में देयर इज अ लाइन दैट वी ड्रॉ, लव फॉर ऑल है बट देयर इज यू हैव टू वर्क इन दैट सिचुएशन। और अगर किसी को हम मारते हैं बॉर्डर पे, अगर हम एक टेररिस्ट को मार रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो इमोशंस अंदर जागते होंगे, या कि उनकी भी फैमिली है, चीज़ें हैं जो आपने मुझे पहले भी बताया है कि शुरू में लगता है, और जो यंग जाते हैं एकदम से मिलिट्री में, शुरू में बहुत ये चीज़ फील होती होगी। तो कैसा, मतलब उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? मतलब वही डिस्टिंक्शन है, ये ड्यूटी है, एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी करनी है हमने। क्योंकि देखो, देश की सुरक्षा करना और देश के बारे में सोचना, ये भी किसी न किसी ने सोचना है। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, पुलिस होती है। इसका काम है एक समाज के अंदर एक बैलेंस बना के रखना, है ना। नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा कोई क्या कर रहा है। सो लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करना, ये हमारी ड्यूटी होगी। और एक अच्छा इंसान बनना वो हमारा फर्ज है, वो हमारा धर्म है, जो हमने घर से सीखा है, स्कूल में सीखा है और हम किताबों में पढ़ते हैं। सो इसके बीच में देयर इज सफिशिएंट स्कोप इस स्पेक्ट्रम के अंदर टू बी एबल टू किल व्हेन रिक्वायर्ड टू किल। एंड ओवरऑल यू मस्ट बी अ गुड पर्सन। नाजायज को नहीं मारना है, टॉर्चर नहीं करना है, और कोई अगर ठीक हो सकता है मिसयूज नहीं करना है पावर, मिसयूज नहीं करना है पावर को। तो वहां पे मुझे कभी डाउट नहीं। ठीक है। गुरुजी मुझे कंपैशन को थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाइए। मेरी अंडरस्टैंडिंग कंपैशन की अभी तक ये है कि कंपैशन में यू फील द इमोशंस ऑफ द पर्सन इन पेन, बट आप उसके इमोशन से अटैच नहीं होते हैं, मतलब एज इन आप वो इमोशन नहीं फील करते हैं। यू फील द इमोशन बट आप वापस आके यू फिगर आउट अ वे टू हेल्प दिस पर्सन नाउ, how can I contribute or how can I help। जबकि एम्पैथी में आप वो इमोशंस को भी फील करना शुरू कर देते हैं, एंड मे बी आप वो इमोशंस इतने हैवी होंगे कि आप खुद भी डाउन फील करोगे, आप हेल्प नहीं कर पाओगे उनकी। तो व्हाट इज कंपैशन एंड व्हाट इज एम्पैथी, थोड़ा सा ये समझाइए प्लीज। Actually, compassion is in the hearts of everybody. सबके अंदर compassion, करुणा, दया है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करने के लिए ठीक से वातावरण या आप एजुकेशन बोलिए, यो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। अभी क्या हो रहा है, और एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, सब आपने को ठीक करना है। You know, our whole education system is based on how
I should be number one, you know, in all aspect, in whether it is facing an interview or getting a job, how I should be number one. हाँ जी सब उनका वही रहते हैं. बिल्कुल. In the education, very little is mentioned that others above oneself. I like the slogan of Rotary Club, you know, others above self, others above oneself. So wonderful, compassion, exactly these things. हाँ जी ये लोगों को नहीं सिखाया जाता है. Education, there is a serious shortcoming in our education system. बिल्कुल बिल्कुल. Whole education system is focused on oneself or forget others. हमें ये जानना है कि हम भी we cannot grow myself without others. My growth, my development, my achievement also depend on others. बिल्कुल है कि नहीं? Depend on others. वो others लोग भूल गया है. तो compassion का अर्थ होता है putting oneself in other place also. मतलब ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं हम. Yes, very much selfish. अभी जितने भी क्राइसिस चल रहा है दुनिया में, आप जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ करुणा, कंपैशन, ड्यू टू द लैक of concern about others, care for other, concern for other, love for other, compassion for other decreasing. बिल्कुल. आपने कोई पहले ले जा रहा है, इन्वायरमेंट को जो भी होना होने दो, दूसरों को जो भी होना दो, मुझे ही अच्छा होना, एट एनी कॉस्ट मुझे आगे बढ़ना, मुझे अच्छा होना, मेरा सब कुछ अच्छा होना है. वो अभी उसी के कारण से because of that we are facing all these problems. Now somehow if we can come together, discuss seriously and try to educate particularly the student, a young generation, to develop the compassion. When we develop compassion for others, much of the crisis will go down. All these crises are facing due to the human egotism, greed, selfishness. Selfishness, greed, egotism. Now if you develop compassion, क्या होता है? You are putting yourself in place of others, those who are in difficulties. Compassion का अर्थ होता है to transform this attitude, the attitude from what can you do for me, what can you do for me, to what I can do for you. On the other side, हाँ जी. To compassion का अर्थ होता है to transform this attitude from what I can get from you to what I can give you. This is the thing. Agar if we can develop this attitude, then we won't be doing anything which is harmful to others. When we stop thinking and doing anything harmful to others, much of the problem will be solved out. All this problem sort out. बिल्कुल. So compassion, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर हम genuine compassion को develop कीजिए ना, so like with the compassion, a doctor can become a medicine Buddha. With the compassion, a hospital can become a temple of God. Without compassion, gods don't exist in temples also. If there's no compassion, अगर love नहीं है, अगर कोई उसमें जा नहीं सकता है कि भाई इसमें यही लोग एंट्री कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी actually there's no compassion. Exactly. Without compassion, a hospital may become an organ trade center. Without compassion, a doctor may become a dangerous. You know, and the role of the doctor and the role of God is same. What is the role of a God? What is the job of God? To relieve and release people from the pain and suffering. That is exactly the job of a doctor, isn't it? But if the doctor doesn't have compassion, if the doctor put one side, I should earn more money, I should get better, then doctor will use everybody. So you know, some years back I was in Taiwan. One fine morning my friend came running to me holding the newspaper in his hand and said, Sangasana, look at what's happening in India. I said, what? And he showed me the newspaper with the heading, Kidney Records in South India. And that newspaper was telling, there are hundreds of people in India, maybe other country also. You can say there are hundreds or thousands of people in the world whose kidneys have been sold
Yes, Without organ them trade knowing. is a Organ trade. world over. It's like gun running. Kidney It's as dangerous gun running and narco selling drugs. Right. Rackets. And they do not know one of their kidney has been stolen. How dangerous it is. Whereas the doctors are supposed to save Yes, the yes. kidney, or if the kidney is a problem, they're supposed to give some medicine treatment and make healthier. Instead of that, a healthy kidney was taken out. I think it This is needed- exactly Yeah. due to the absence of compassion, yes, बिल्कुल. absence of love and care and concern for others. So today's biggest problem is lack of Lack of Mahakaruna, compassion. the unconditional, the universal compassion. And somebody asked गांधी जी को पूछा गया कि आज के समय में, आज के युग में सबसे बड़ा संकट क्या है? डू यू नो गांधी जी ने क्या बोला? आज के समय में सबसे बड़ा संकट है मनुष्य का हृदय में करुणा का सागर सूख जा रहा है. Compassion is drying out from the hearts of the human beings. That's we clearly see. बिल्कुल clearly. बिल्कुल सही बात है. So that is why for last many years we have started a movement called Compassion in Actions movement. We organize in different parts of the cities in India and abroad also, and it is bringing good result. And we have signed MOU with several universities and educational institutions. They are willing to now start a new course on compassion in action, their educational programs. Wow. And recently, I'm very happy to mention you, recently we have been able to bring out a beautiful book, Wow. Mahakaruna, a holistic movement for the global peace through compassion in actions. और इसमें जबरदस्त चीज क्या है प्रणव, मैं तो इन इवेंट्स में गुरुजी के साथ पिछले 5 साल हो गए अभी जुड़े हुए हम जी. और कि इसमें गुरुजी तो एक भिक्षु है, मॉन्क है, लेकिन इनकी टीम के अंदर आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे. बिल्कुल. हम जितना इंटरफेथ हार्मनी पे इन्होंने काम किया, ये मेरे लिए बड़ा आई ओपनर था कि गुरुजी जहां बैठते हैं अपने आश्रम में, जब मौलवी जी आ रहे हैं तो अपने गले लग के उनको अपनी कुर्सी पे बैठा देते हैं. ये हम्बलनेस, ये कमाल की चीज मैंने जो है ये लद्दाख में देखा है, गुरुजी के साथ देखा है. और इसमें जो मेन स्पीकर थे महाकरुणा, उसमें एक जैन मुनि थे. तो जैन मुनि है, सिख समुदाय के लोग हैं, सभी फादर आए हुए हैं और कई अलग अलग समुदाय के पंडित जी ब्राह्मण आए हुए हैं, मुस्लिम उसके समुदाय के लोग आए हुए हैं, और सारे खड़े होके कैसे हाथ पकड़ के, और कितनी बार हमने इंटरफेथ हार्मनी पे बात की कि ये अगर लोगों के दिल में आ जाए कि भाई सब धर्म एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ये वो हो गया है, मैं अच्छा हूं ये सारे खराब हैं. करेक्ट. वहां जाके ज्यादा भेदभाव आ गया कि वो कपड़े कैसे पहन रहा है, वो इबादत कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है. तो ये जो महाकरुणा की बात है, कंपैशन इन एक्शन, कि कुछ करके दिखाओ. सर कंपैशन का मुझे एक चीज़ बताइए. अब आपने टेररिस्ट भी देखे हैं, फेस टू फेस देखे हैं. आई थिंक वो तो बिल्कुल ऑपोजिट सोचते होंगे कंपैशन से. आई थिंक उनको तो बिल्कुल ही उनका ब्रेन वॉश होता है. हाँ, ब्रेन वॉश होता है, लेकिन अगर आप उनसे बातचीत करो, है इंसान, अच्छा. उनके भी माँ बाप है. हाँ जी और बिल्कुल. मैं वहां पर भी मैंने पाकिस्तान के बच्चों से बात की, हमारे जो J&K के बच्चे गुमराह हो गए उनसे बात किए, और शायद मैंने आपके साथ शेयर किया था जब हाँ मैंने जी. वो बिल्कुल. एक मिलिटेंट को पकड़ा पकड़ा था, था, हाँ जी. उसका फौज में भर्ती कर दिया. हाँ. और कल परसों उसने फिर मुझे अपनी तस्वीरें कुछ अच्छा. भेजी हैं. तो ये प्यार ना, ये कुछ भी कर सकता है. बिल्कुल. जब वो इंसान जो इतना, जिसका दिमाग इतना कह लो एंटी इंडिया हो चुका है, वो पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग ले चुका है यहाँ के लोगों को मारने के लिए, उसको अगर हमने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, हम तो यूनिफॉर्म में है, हमारा काम है मारना, लेकिन उसको भी अगर हम टर्न अराउंड कर सकते हैं. और आप सोचो, उसी को नहीं, उस जनरेशन के जितने बच्चे थे, अब क्यों कश्मीर में बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, नहीं तो कहना चाहिए ये तो RR में था, ऑफिसर था, कहते कि नहीं ये नेक इंसान था. तो यूनिफॉर्म में रहते हुए भी आप नेकी का एक मुजाहरा कर सकते हो, क्योंकि ये भारत की तस्वीर है. आप यूनिफॉर्म जो पहनते हो ना, आप इंडिविजुअल नहीं हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ ग्रेट आर्मी एंड अ नेशन. बिल्कुल. ये समझना, ये मैंने समझा, यही मैंने कोशिश की अपने जवानों को बताऊं, अपने यंग ऑफिसर्स को बताऊं, समझाऊं कि हमारा रोल कितना जरूरी है. इसलिए कंपैशन हर जगह जरूरी है, पुलिस को भी जरूरी है
आर्मी को भी जरूरी है, जुडिशरी को भी जरूरी है, और सबसे जरूरी पॉलिटिशियंस को है वाह। कि आप भी कृपया करके इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन भाषा कम से कम अच्छी बोलें बिल्कुल। और सोचे कि आपके शब्द कहीं किसी के दिल को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। हाँ, कंपैशन वो रखना चाहिए। ये कंपैशन। जर्नल साहब ने एक बहुत अच्छा बोला, एक नहीं सभी अच्छा बोला, लेकिन जो शुरुआत में बोला टेररिस्ट के अंदर में भी इंसान है, वो भी मनुष्य है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनको टेररिस्ट बोलता है, हाँ जी, वो अपने आप को टेररिस्ट नहीं समझता है। हाँ जी, हाँ जी। यू नो, उसका भी कुछ मजबूरी होगा, कारण होगा। अगर हम उसको टेररिस्ट के रूप में ना देके इंसान के रूप में देगा तो मसला बिल्कुल निकलेंगे। जिससे इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है हर धर्म में। तुम्हें बुद्धिज्म को बुद्धा के साथ क्या हुआ, अंगुलीमाला बोल के था, उससे भी बड़ा टेररिस्ट क्या हो सकता। हाथ में तलवार लेकर के कितने लोगों का हत्या कर दिया, हजारों का कर दिया। वो भगवान बुद्धा के साथ मिला तो भगवान बुद्धा ने वो टेररिस्ट के रूप में नहीं देखा, ये इंसान है, इसको थोड़ा गलत फैमिली हुआ, समझा नहीं है, अज्ञानी है, इसको समझाना है। तो माँ करुणा से उसको समझाया, समझ गया। वो इतने लोग मार दिया था उसने, मर्डर किया, खत्म किया, मगर बुद्धा का बात समझ टोटली ट्रांसफॉर्म। देयर आर सो मेनी केसेस ऐसे माँ करुणा को, कंपैशन को अप्लाई करके वो समझते हैं। हम उनको टेररिस्ट बोलता है, कहीं ना कहीं अंदर इंसान है वो। मैंने गुरुजी ये अपनी जिंदगी में कश्मीर पंजाब में देखा है। मैं बाहर की, मैं साउथ अफ्रीका में था 1993-94 में यूनाइटेड नेशंस में, जब ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने, पहली बार ब्लैक्स को जो है जो अपार्थाइड खत्म हुआ और व्हाइट गवर्नमेंट ने कहा ठीक है फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। तो वहां पे जो माहौल था, मैं केप टाउन डरबन घूम रहा था, लोग सोच रहे थे अब ये व्हाइट को मार देंगे, काले लोग आ जाएंगे और पूरा देश साउथ अफ्रीका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये राष्ट्रपति बना, सबसे पहले इसने बोला ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। मतलब ये दूसरा महात्मा गांधी था दुनिया में, नेल्सन मंडेला। वो देश ना, मैंने अपने सामने, मैं 3-4 महीने और रहा उसके बाद, वो बच गया देश, कोई आग नहीं लगी, किसी ने मारा नहीं किसी को। क्योंकि लीडरशिप का, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जो लीडर्स हैं उनका बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, मार्टिन लूथर किंग हो गए, मदर टेरेसा हो गई, ये सब के सब लोगों ने जोड़ने का काम किया लोगों को। तो ये काम है जो, यही आप और मेरा काम है। बिल्कुल, यही मैं बोलना चाहता हूँ। अगर हमारे लोग जो यंग जनरेशन पर्टिकुलरली ये यूनिवर्सल कंपैशन को, माँ करुणा को समझाया तो यही होगा। ये माँ करुणा अप्लाई करने से क्या होगा, अभी हम पूरा दुनिया डिवाइडेड है। वी आर द अमेरिकन, वी आर द यूरोपियन, वी आर द एशियन, वी आर द बुद्धिस्ट, वी आर द हिंदूज, वी आर द मुस्लिम्स, वी आर द ब्लैक, वी आर द वाइट, वी बिलोंग्स टू दिस रेस, दिस लैंग्वेज, उसमें पूरा में बांटा हुआ है। तो माँ करुणा इस यूनिवर्सल अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें इंक्लूसिव है, सब मिल करके। तो माँ करुणा अगर ठीक से समझा किया तो ये एक हम इस लेवल में आएगा, वेदर यू आर अमेरिकन, यूरोपियन, एशियन, whether you are Buddhist, Muslims, Christian, that we are all human beings. We are not strangers to each other. We are not enemy to each other. You know, no matter what differences we have, differences of language, nationality, other identity we have, fundamentally we are same in the one. That we are all human beings, member of one family, the human family, the global family. We are all born in a similar way, and we are all growing in a similar way. And we will all die one day. The American will die, the European will die, the Asian will die, the Muslims will die, the Buddhists will die, Hindus, all will die. Nobody will be spared from that. All. And then we all, whether you are American, European, Asian, whether you are Buddhist, Muslims, Christian, Hindu, whosoever, we all share one planet, one Mother Earth. We share the one planet. And we live under one sun, one moon, one sky. Exactly. Right? And we all need water to survive. Same, सब कुछ कॉमन है, सब कुछ कॉमन है, सेम ब्लड फ्लोज थ्रू। और आपने जो चीज टेररिस्ट में भी देखी वो कमेंडेबल है, उस सिचुएशन में होते हुए भी अब यू रियलाइज कि ये इंसान है और उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि उसकी ऊपर की लेयर्स आप हटा के देख पाए उसको। एक उसने मास्क पहना हुआ था, उसके लिए बैठना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद दिल खोल के बैठना पड़ेगा। हाँ, तब वो बोलेगा। तब पहले आप अपना दिल खोलो, हाँ, फिर देखो कि पहले कंपैशन होगा तभी उसका कंपैशन निकल के आएगा, तभी निकल के आएगा। तो ये ऐसे बहुत, you know, we are, as I was telling, we breathe the same air for our survival, we drink the same water our survival, all whether
American, European, Asian, despite of all the differences we talk about. There's no difference. All the differences created by our ignorance. And also above all, we're all same. You may be known as Buddhist, Muslim, Christian, so American, European. We're all same body, mind. Everybody have 2 eyes, 1 nose, 2 ears, 1 mouth, 2 hands, 2 legs, and 1 small heart somewhere here. Yes. Inside the heart, they're the same desire and same wish to avoid all kinds of problems, sufferings, and the same wish and desire to enjoy peace, prosperity, good health, all the good things of life. Where is the difference? Where is the difference? So if we can develop this Mahakaruna, the great compassion, all these differences will disappear. Once again, humanity will understand each other, that we are brothers and sisters. We are not enemy to each other. The billions and billions of money is spent today for harming others, for killing each other. We're killing our own brothers and sisters. Yes. We're harming our own home, the Mother Earth. We don't understand. This all the result of the lack of Mahakaruna, great compassions. इसके लिए आई थिंक जो आप बोल रहे हो जो जूम आउट करके मैक्रो लेवल पे चीजें Exactly. देखी जाए मतलब और अभी आप देखो दैट 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है और कम होने का नाम नहीं है. अगर 0.5 और बढ़ जाएगा 2 होगा. ऑल गॉड्स पुट टुगेदर कांट सेव अर्थ. ऑल रिलीजन्स टुडे मॉर्निंग इटसेल्फ आई वाज टेलिंग माय स्टूडेंट्स कि सारे भगवान मिल जाएं तो धरती को बचा नहीं सकते. नहीं बचा सकते. इंसान नहीं बचाना, इंसान नहीं बेड़ा गर्क किया. बिल्कुल. सो फ्रॉम एनवायरनमेंट, वाटर, वी हैव ओनली वन हिमालयस जो हम गुरुजी हमेशा बात करते हैं. पूरे देश अगर हम अपने इसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टिंग, वहीं से कंपैशन स्टार्ट होता है. जब पशु पक्षियों की देखभाल करते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं, उनमें भी देखते हैं यार ये भी जी रहे हैं और ये हमारे लिए जी रहे हैं. सो वो अगर आप पूरी लाइफ में ट्रांसलेट करो, अगर बच्चे से सिखाना शुरू करो, जैसे बहुत यंग एज पे अगर बहुत यंग एज पे घरों से शुरू होना चाहिए, तो वो बड़े होके जो आई थिंक जो एक टीनेज में टर्बुलेंस आता है ना माइंड में, वो भी संभालने की शक्ति आ जाएगी. बिल्कुल. क्योंकि वो टर्बुलेंस में आप इमोशनली फेंके जाते हो नीचे. आपको इमोशनली चोट लगती है. इतने इंसिडेंसेस होते हैं टीनेज में बच्चों के साथ. वो कोई रिलेशनशिप में मार खाता है, कोई अपने प्रोफेशन में मार खाता है, कोई स्टडीज में मार खाता है, और सब एंड में स्ट्रेस या एंजाइटी में कन्वर्ट होता है. आज मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू है यंग में. अब कोटा फैक्ट्री में देखो गुरुजी, कोटा के अंदर क्या हो रहा है. कितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं कुछ बनने के लिए और वो कुछ कर नहीं पाते. हाईएस्ट सुसाइड रेट है वहाँ पे. हाईएस्ट सुसाइड रेट है उस शहर के अंदर. जो कोचिंग इंडस्ट्री, एक माँ बाप का दिमाग खराब, बच्चों का दिमाग खराब, कितना हमारे यंग पीपल को जो है हमने वो कर दिया बिकॉज देयर इज नो कंपैशन और कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं. लड़ाइयाँ घर में, लड़ाइयाँ हैं माँ बाप ही नहीं बच्चों को सुनने ये के बोला तैयार. जा रहा है कि तुम पढ़ते नहीं हो तो तुम्हें कोटा भेज देंगे. हाँ. बहुत सारी चीजें हैं. जी. वही I personally strongly believe it's not a belief I could see clearly as a result of last 30-40 years research and effort to put this in compassion. We have a huge campus in Ladakh. We have initiated numerous humanitarian spiritual service programs spread over 250 acres of land in Ladakh. We have the medical program, hospital. We have the education program starting with the nursery up to 10 plus 2, where nearly 1,000 students are studying there. Wow. We have old age home, yoga, meditation, environmental projects, and all these things. So all these projects are guided by compassions. So my experience tells clearly, so if we can properly take up this universal compassion in all the fields, not in one field, compassion for politicians, compassion for business, corporate world, compassion in education, compassion in business world, in all aspects, agar compassion ko lagaya, to no, a compassionate person will never try to, harm or try to have more than what we need. Our problem is today, we have no concern, care for others. We are trying to accumulate, trying to have more than what we need. Again, Gandhiji said, the nature, the world has enough for our need. Yes. But never enough for the greedy. बिल्कुल. So, compassion will help us to draw the line between what is need and greed. Yes. We people don't know what is need and greed. हाँ जी. And our education system, our corporate, our worlds,
uh, also teach greed, but they instead of using this word greed, they use the word development. डेवलप And then everybody agree, oh yes, there should be development. हाँ जी. But if you look carefully, go into it, yes, this is development, but what kind of development is development of greed? Greed, You correct. look at Ego and greed. development के नाम पे we may not have environment for our future generations. You see what is happening उत्तराखंड. बिल्कुल 10 years down the line. उत्तराखंड में आप देख लो, हिमाचल के अंदर आप देखो, सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, everywhere we are having flash floods, we are having cloud bursts और रोड बह रहे हैं, टनल अभी आपने देखा सिलकाट, हाँ। ये सब हमारी ये फॉल्स सेंस ऑफ डेवलपमेंट है, फॉल्स सेंस ऑफ डेवलपमेंट कि मुझे आज डेवलपमेंट चाहिए, किसी ने पैसे बनाने, किसी को नाम चाहिए, बिटवीन नेम एंड फेम बिल्कुल. and corporate greed, Futuristic- companies which are involved into construction, तो ठेके दो फटाफट, ठीक है. डैम बनाना है, टनल बनाना है. अरे यार जिसने तीर्थ यात्रा जाना उसको पैदल चलने दो 3-4 दिन. पहले भी तो लोग पैदल जाते उसका थे, पर्पस होता था. तो पर्पस था दैट सेल्फ रियलाइजेशन. आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो, आपको सोना भी चाहिए वहां पे, आपको फिर नहाने के लिए शावर भी चाहिए. वीवीआईपी दर्शन. वो तो लद्दाख में तो लोग 5 लीटर पर रोज पानी पे सारा साल निकाल देते हैं, हाँ। पर जो टूरिस्ट जाता है उसको तो 5 लीटर तो जब भी वो सुसु करने जाता है फ्लश कर देता है. बिल्कुल तो बिल्कुल. कहाँ से ये प्रॉब्लम है? बिल्कुल. रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात है, ये सोचने की बात है कि ये जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं इसकी देखभाल करना, एनवायरनमेंट की, उसका फ्लोरा, उसका फौना बहुत बहुत निहायत जरूरी. नहीं तो अगली पीढ़ी को देखने के लिए नहीं मिलेगा ऐसा. हम And सर we आप- call it, this is development. We call it call it development. development. और सर आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ये जिस दिन टेम्परेचर बढ़ गया ना, कोई भी नहीं बचा पाएगा. कोई नहीं बचा पाएगा. क्योंकि सर ये अब क्या है ना कि ये चीजें हम रियलाइज नहीं करते, हम ईगो में सोचने लग जाते हैं कि नेचर हमसे बड़ा कोई नहीं है. नेचर जिस दिन आपको सफाई करने पे आ गई, बहुत बहुत चीजें यूरोप के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है. आप कभी सोच सकते थे यूरोप में 45 डिग्री? Reverse हो रहा है. हमारे देश में कहाँ फ्लड्स आ जाए, कहाँ कुछ हो जाए, और हमारे पास पॉपुलेशन, बाकी लोग संभाल लेंगे, पॉपुलेशन कम. हाँ. पिछले साल पाकिस्तान की फ्लड्स इज अ पॉइंटर, जो वहां फ्लड्स आई, ठीक है, हमें लगा कि हमारा दुश्मन है, लेकिन ये कल यहाँ पर भी होगा. बिल्कुल. सो वी हैव टू एनवायरनमेंट का केयर करना उतना ही जरूरी है जितना दूसरे इंसान का. बहुत ज्यादा. हाँ. अब सर जैसे 40 इयर्स आप दोनों ने अपने अपने डोमेन में स्पेंड करें, एंड आप दोनों की जर्नी में कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन और डिटैचमेंट वाला पार्ट ज़रूर था फैमिली से, अपने चीज़ों से, क्योंकि आप दोनों ने जहाँ जैसे आपने बॉर्डर पे सर्व किया है, फैमिली छोड़ के जाते हैं, आपने भी फैमिली से दूर जाके आपने ये समझना सीखा, कंपैशन, मेडिटेशन. कितना डिफ़िकल्ट होता है शुरू में, उस एज में जब आपने शुरू किया था ये डिटैच करना, और डिटैचमेंट को यार थोड़ा सा समझाइए मुझे प्लीज. गुरुजी समझाएंगे, क्योंकि असली डिटैचमेंट इनकी है. हाँ जी, हाँ जी. असली डिटैचमेंट इनकी, और बहुत मुश्किल बहुत डिटैचमेंट ज्यादा, है. एक तो बहुत भिक्षु मुश्किल बनना, होता है. एक बहुत मॉन्क मुश्किल बनना और होता है. पूरी हाँ जी. जिंदगी देना बहुत मुश्किल है. या वो तो मैं बचपन से ही, as I was telling this morning, I had a question about life, about the creations. I see so many differences here in our life. So I've been wondering about that, and always I was very inquisitive. I want to know. I want to climb up the top of the mountain and see what is the other side. Sometimes military airplane used to pass away. Oh, that used to take me to another world, thinking from where it has come, and where it is going. I want to know. That curiosities, that questions, that quest, make me to renounce, detach. Because without detaching, without renouncing, we can't know much. If we remain, attached to one's family, one's area, then we are in a way, your door is closed for further knowledge, further development, further enlightenment. So that forced me. Then in Ladakh, those days, 60s, 70s, the only new thing was the Indian Army. Those days, Ladakh was totally different world, another world. And I was so curious, so inquisitive to see more, learn more, and see new things. And the new things was only Indian Army. I was very much attracted by the uniform of Army. I don't know what is the meaning and purpose of that. I went for the uniform, and I enjoyed every bit in the training in Army. I learned so much in Indian Army. The good things we learn from Army is the discipline. For that matter, I think
I think all civilians should go and serve in Indian Army to learn discipline. good discipline Bilkul, and little bilkul, bit bilkul. nationalism also, Desh bilkul. Bhakti. Though I was one of the youngest fellow in my platoon, those days no birth certificates required. There was one doctor captain and he told me, are you 18? You have to be 18 to get admitted in army. I mean, bola, sir, 18 or no 18, I can do it. So he laughed and took me. And later on I realized, many stronger and taller than me were rejected, and I was selected. I was the youngest fellow in my platoon, and my gun was taller than myself. I enjoyed every bit, all in the discipline part. In civilian, the discipline is lacking. And when this Agniveer scheme came up, I was really happy in the sense that, I myself have been promoting this idea in different ways. I have not been telling the exact 4 years service, but I have been telling that every young fellow should go and go through serve discipline. in Indian Army for few years, not using Very the good. 4 years, but few years. And now the 4 years, so my views is that many more young fellows will get opportunity to serve in army, learn discipline and little bit nationalism. So this is good things and I have learned. But later on then I realized again through my constant reflections, meditation and think there's something more, something broader. Our Indian Army, wonderful देश की सेवा भक्ति करने के लिए wonderful. But India is one part of the world. I wanted to know the whole world. I wanted to see the whole world. Like universal compassion, universal love includes all. As we are not strangers to each other, we are not enemy to each other. We evoke that, and that is how. And I'm glad, very happy today that I had the opportunity to serve in Indian Army, did little service, and I'm very happy to share with you. Recently, the Chief of the Indian Army sent me an invitation in the name of Sipai Sri Angchuk, remembering my little service seva. Exactly where this tension built up, serious tension, war-like situation built up on the Indo-China borders, the Gadwan Valley, the Chushul side. I served there 1.5 years. I also had the opportunity to serve on the India-Pakistan border where Kargil war took place, Chor Badela, all these things. So the Chief of the Army, maybe I thought General Sahib or somebody recommended, they sent me invitation and it was so emotional moment to see all the journals and this, So I enjoyed very much in India. Now as a monk, a little bit broader than army, little bit more than army, beyond the army, beyond the India global level. I've been able to think and do little seva service. This is wonderful and I'm so happy to have the wonderful association with General Sahib. As I told you, Ladakh have a huge military establishment and so many generals and soldiers are in Ladakh. They serve. I had the privilege to meet so many generals, but General Yashmore stands unique, wonderful. Bilkul. He's not confined to his small general's office and the paperwork, signing up and taking salutes, but he is now one of the outstanding, motivator speakers. He has become a source of inspiration बिल्कुल सर, to मैं खुद millions inspire of हुआ। young people across India and beyond the India. इतना So I wonderful. personally got very inspired जब मैं सर से मिला ना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और एक एटीट्यूड में ही फ़र्क है, मतलब बहुत ही आप जो बोलते हो ना मैं लाडला था सबका, वो मुझे बिल्कुल आई कैन रिलेट टू दैट, बिल्कुल आपकी लाडले वाली पर्सनालिटी है। कंपैशन बिल्कुल। सोल्जर्स के लिए ना, एंड दैट इज वेयर आई लर्न। यस कि देखो गुरुजी ने तो अच्छा, एक और हमारा कमाल का कनेक्शन है। मेरी स्कूलिंग बैंगलोर की है, अच्छा। गुरुजी को दीक्षा बैंगलोर में मिली। हाँ जी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ। ये मॉन्क लद्दाख से हैं, हाँ जी। फौज ज्वाइन की, बताया बट गुरुजी इनको ने। दीक्षा जो मिली मॉन्क हुड, जो उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की बैंगलोर से। वो बैंगलोर में, और मैं मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में पढ़ता ओहो। था। तकरीबन ये ओवरलैप, पता नहीं ये पिछले जन्मों का है क्या है। हाँ जी। वो तो ये रहा है, बट ये मिलिट्री के अंदर भी कि टू हैव अ हार्ड कोर, बी अ पर्सन ऑफ वेपन,
कैन हैव कंपैशन। इसीलिए मैं कहता हूँ द ग्रेटेस्ट टूल अ सोल्जर कैरीज इज नॉट हिज वेपन बट हिज माइंड। माइंड, बिल्कुल इज नॉट द वेपन, बिल्कुल, इज द बिल्कुल, माइंड। बिल्कुल। तो सोल्जर का भी माइंड है, तो द माइंड को आपने कल्टीवेट करना है, माइंड को हार्नेस करना है, माइंड को कैपेबल बनाना है। और माइंड में सिर्फ करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए हर इंसान से, और खास तौर पे एटलीस्ट जो भारत में रहते हैं बिल्कुल उनसे तो होनी बिल्कुल चाहिए। सर। ये आपने अपनी टीम में भी ये चीज यूज करी है। हाँ। जब आपने बोला था कि मेरी टीम वालों ने बोल दिया कहीं और किसी और टीम में हम नहीं जा रहे, हम आपके साथ ही हाँ, रहेंगे, कहते हैं नीचे गिर दो मर जाएंगे, जब रहेंगे आपके साथ ही रहेंगे। वो कितना Now, दूसरे बात when we talk about army, you know, जब आर्मी की बात करते तो सबके मन में यही होता है कि आर्मी is to fight and kill. हाँ। No, Indian, particularly Indian army, you know, very strongly guided by our ancient wisdom, karuna, ahimsa, maitri. Indian force, Indian army is not offensive but defensive है। या वी हैव टू मेंटेन पीस पीस के लिए है, देश की रक्षा करना, सेवा करना, नॉट ऑलवेज And to maintain peace, इफ absolutely. हाँ। रिक्वायर यू नो, अगर हमारे ऊपर कुछ अनजस्ट अनफेयर कुछ अटैक होता है तो डिफेंस, इट्स डिफेंस नॉट ऑफेंसिव। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो इंडियन आर्मी को हमेशा, आर्मी यू शुड नॉट थिंक ऑलवेज इट इज जस्ट टू किल अदर्स, फाइट अदर्स। इट इज keep peacekeeping force, peacekeeping, yes. And also nation building. nation building, exactly. Nation building, Stitching the forces nation, का बिल्कुल। stitching together. Then you create jobs, you create environment, you create discipline, जिसकी हम बात कर रहे थे। आपके cantonment इतने सुंदर है, और सर आपने जैसे आप बताया था ecosystem भी कि देखभाल करते हैं। हाँ, आप जहाँ पे थे, जहाँ पोस्टेड थे, वहाँ के लोकल्स आपको हेल्प करने लग जाते थे, क्योंकि वो स्टिचिंग, हाँ करेक्ट, आपने इकोसिस्टम बनाया है, वो बिल्कुल। अब लद्दाख में फौज लड़ सकते हैं क्योंकि लद्दाखी लोग हमारे साथ हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर जगह यही है, तो लोकल लोगों का, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। मुझे सर ये बताइए, जब आप शुरू में गए थे, जब बिल्कुल यंग एज में गए, तो फैमिली से जब दूर हुए, वो पार्ट मुझे थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि एज अ मंक मुझे समझ आ रही हैं चीज़ें, टू नो कंपैशन, टू नो डीपर थिंग्स, यू डिटैच। आपके लिए कितना मुश्किल था? मेरे को लगता नहीं मुश्किल था, ठीक है। बिकॉज बहुत खुशी की मौका था। हाँ जी, एक तो बिल्कुल। कि आप एक गांव के परिवार से, जहां लोग खेती करते हैं, सिपाही बनते हैं मैक्सिमम, वहां से आप ऑफिसर बने हो, तो इट वाज अ ह्यूज मोमेंट। और उसके बाद वहां पे क्या, एक लीडरशिप रोल, हर एक को अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंट लीडर, यहाँ स्टार लगा हुआ है, लोग सैल्यूट मार रहे हैं, काम मिल रहा है, कहीं डांट पड़ रही है, कहीं शाबाशी मिल रही है। और फौज में क्या, बीच बीच में वो ब्रेक मिलता है, जब व्हेन यू गो होम। हाँ जी, क्योंकि घर वालों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हाँ, होगा। घर वालों के लिए, मदर के लिए होता है, बिल्कुल, लेकिन हमारे मन में अलग ही, हाँ जी, हाँ। अलग वो होता है। फैमिली के लिए होता है। मैं Family थोड़ा के सा लिए होता है। फैमिली पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एक दिल का टुकड़ा घर पे भी है। हाँ, वो होता है, लेकिन इट गेट्स कंपनसेटेड बाय द रिवॉर्ड यू गेट, Reward. बाय द एनकरेजमेंट। आपको इज्जत इतनी मिलती, बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी इज्जत मिलती तो आपको अच्छा लगता है। और बीच बीच में आपने 2 साल हार्ड वर्क किया, उसके बाद आपको ऐसी जगह मिल जाती है जहां आप परिवार के साथ ला रह सकते हैं, माँ बाप को हाँ, बुला सकते हैं उनके साथ। सो ये हॉट एंड कोल्ड हाँ, बिल्कुल। चलता रहता है, ऑन ऑफ चलता रहता है। हाँ जी, शुरू में फैमिली को थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन फिर एडजस्ट हो हाँ, गया। बाद में एडजस्ट हो जाते हैं। गुरुजी, एक मंक के लिए डिटैच होना क्यों इम्पोर्टेंट है, मुझे थोड़ा सा ये बताइए। क्या व्हाई इज दैट डिटैचमेंट नीडेड? डिटैचमेंट नहीं हुआ, अटैचमेंट हुआ तो एस आई टोल्ड यू, यू रिमेन कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल एरिया, अपना फैमिली। जिससे अगर हम डिटैच नहीं करता है, घर छोड़ के नहीं जाता है, तो मैं अपना गांव में एक घर में एज ए सोल्जर, एक सिपाही में क्या कर सकता हूँ। हाँ। अपने शायद अपने फैमिली को भी इतना ठीक से देखभाल कर सकते हैं कि नहीं सकते, पता नहीं। जनरल साहब तो अलग है, जनरल है, मैं तो सोल्जर था ना। तो अभी मैं उसको छोटे फैमिली को रिनाउंस कर किया, डिटैचमेंट करके किया, तो आई माई सेल्फ वाज एबल टू लर्न so many things without renouncing, without detachment. I don't think I had the opportunity to travel all over India, around the world. You know, Confined हो छोड़ जाता के नहीं जा सकते, छोड़ के नहीं रह सकते। हाँ जी, और हम खुद भी इतने ज़्यादा सीखने का मौका नहीं मिलता है, और हमारे तरफ से और कुछ सेवा होगा कुछ करने का इतना नहीं कर पाता था। बिल्कुल। यू नो, जब हम जब भी अपने छोटे घर को छोड़ के गया, तो फिर वी कैन एम्ब्रेस द होल वर्ल्ड। नाउ एक किस्म से हम बोलिए आप डिटैच किया, एक किस्म से अटैच टू द वर्ल्ड, डिटैच फ्रॉम स्मॉल फैमिली, अटैच टू द होल Bigger वर्ल्ड, family. ये बहुत अच्छा रिनाउंस द स्मॉल हाउस, बहुत प्यार से बहुत more
whole world. ये पर्सपेक्टिव आप मुझे अब आज पहली बार समझ में आया। जी. Detached from small, But attached to the detached from- bigger thing. Yes. Now you ये are for the whole world. ये आप सही समझ And the whole world is my family now. Wow. Actually, I'm feeling. And it shows आप also. में जहाँ आपके भी हर जाए- एक्शन में नजर आता है। Wow. आप इनके आश्रम जाओगे आपको नजर आएगा। नहीं, मुझे ये बात डीपली टच कर गई आपके, क्योंकि ये हम ना पर्सपेक्टिव ये हमें मिलता नहीं है। तो आपसे मैं इसलिए क्वेश्चन पूछना चाहता था, एंड आई होप द व्यूअर्स आल्सो गेट टू नो, क्योंकि ये चीज़ बहुत डीप बात है जो आपने अभी बोली, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आप दोनों से बात करके कंपैशन के ऊपर, एंड आई होप द व्यूअर्स गेट टू नो मोर अबाउट कंपैशन। एंड if there are more comments and more questions, we would love to host you both Yeah. again and discuss more deeper topics further. Thank you very much. Thank you गुरुजी। Thank you. जुले बहुत अच्छा जुले, लगा जुले, आपसे नमस्ते। प्रणव के पॉडकास्ट में Thank you. मिलने का। Thank you. Hi, thank you for watching till the end. I hope you really liked the video. Please do comment below and tell us your feedback, and also tell us the guests that you would like to have on the show. We will definitely try and invite them and have on the show to discuss different aspects of well-being. Also, please do not forget to like, subscribe, and share, because that helps us to reach out to more and more people to have the impact that we are working for. Thank you very much.